اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی محبت کا معیار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو قرار دیا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بندہ بھی اپنے ایمان کو نہ تو کامل ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی کامل سمجھ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے، دل سے محبت کی جائے، بلکہ جو محبت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کو عشق کہا جاتا ہے، وہ عشق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے کیا جائے۔ اور اس کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کو مطلوب ہے وہ ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، بچے اور جہاں رہتے ہیں جائیدادیں، زمینیں، مربوں کے مالک ہو تو وہ مربے اور دیگر جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور اس کا عملی ثبوت صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں ملتا بھی ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہم چاہتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، تو پھر لازم ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کس طرح متاثر ہو کر انہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانوں کو بھی نچھاور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مجھے آپ ہر چیز سے محبوب ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز آپ کو نہیں سمجھتا، باقی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر فرما دیا تھا، عمر اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اپنے دل پر توجہ کی تھی، اور توجہ کر کے آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا الآن یا عمر، ہاں عمر اب وہ درجہ کمال حاصل ہو گیا ہے ایمان کو جو مطلوب ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی تکمیل اس وقت پاتے ہیں جب اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا نہ بن جائے۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو بخاری شریف میں ہی حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تین چیزیں بندہ پالے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، حلاوت ایمان اس کو نصیب ہوتی ہے۔ پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، کوئی چیز بھی ان دونوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہی خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ جب تم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو گے تو سمجھو کہ جس کے بنائے جانے پر اتنا فخر ہے کہ یہ محبوب بڑا باکمال ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ بھئی ایک چیز بندہ استعمال کرتا ہے پروڈکٹ، وہ پروڈکٹ بڑی اچھی ہوتی ہے اور بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس بنانے والے سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جاتی ہے کہ اس نے بڑی کمال چیز بنائی ہے۔ تو جب سرکار سے بندہ محبت کرتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی توحید کو بھی مانتا ہے کہ جس کا محبوب اتنا یگانہ اور یکتا ہے وہ خدا کتنا یگانہ اور یکتا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کائنات سے محبوب سمجھو، اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ دوسری بات حضور نے فرمایا جس کے لیے بھی محبت، جس کے ساتھ بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو تو اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کیجیے، مولوی صاحب سے، علماء سے، صوفیاء سے، پیروں سے، فقیروں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، مسلمانوں سے،
जिस से भी मोहब्बत करनी है अल्लाह के लिए कीजिए। माँ बाप से मोहब्बत इसलिए ना कीजिए कि हम उसके मोहताज हैं, नहीं, इसलिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है, इसलिए मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है रब की रिदा के लिए, सहाबा से मोहब्बत करनी है अल्लाह की रिदा के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रिदा के लिए। फरमाया अल्लाह की रिदा के लिए जो मोहब्बत करता है अल्लाह करीम उसको भी ईमान की मिठास अता फरमा देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ईमान की मिठास पाना चाहते हैं, ये चाशनी दिल में महसूस करना चाहते हैं कि हमारा रब हमें ईमान की लज्जत अता फरमाए, तो फिर जिससे भी मोहब्बत करनी है खालिस अल्लाह की रिदा के लिए कीजिए। दुनिया की कोई किसी किस्म की ख्वाहिश दरमियान में नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा होगा तो दुनियावी ख्वाहिशात खुद ब खुद अल्लाह पूरी फरमा देगा और रब्बुल आलमीन ईमान की मिठास भी अता फरमाएगा। तीसरी बात रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा कुफर से ईमान की तरफ पलटता है तो फिर दोबारा कुफर में जाने को ऐसे ही नापसंद करे जिस तरह आग में जाने को नापसंद करता है। मोहब्बत करे ईमान के साथ, दोबारा कुफर की तरफ ना लौटे, काफरों से भी मोहब्बत ना करे। काफरों से मोहब्बत करना ही कुफर से मोहब्बत करने के मुतरादफ है। जहां अल्लाह ने नरमी करने की इजाजत नहीं दी वहां पे नरमी किस बात की? जहां पे अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा कि तुम मोहब्बत करो, वहां पे बंदा क्यों मोहब्बत करे? मोहब्बत के डोरे वहां पे डाले जहां रब ने डालने का हुक्म दिया है। तो फरमाया तीन चीजें जिसके अंदर आ जाएंगी अल्लाह करीम उसको ईमान की मिठास अता फरमाएगा। फिर नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ऐसे ऐसे अक़वाल मौजूद हैं और ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मोहब्बत का हक़ अदा किया है। कई बार ये वाक़या मैं सुना चुका हूँ कि एक सहाबिया थी उहद के मैदान में भागती चली जाती थी। उनको किसी ने इतला दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। किसी ने कहा कि तेरा बाप शहीद हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, हजूर का क्या हाल है। और फिर आगे चली तो किसी ने कहा तेरा बेटा, फिर आगे चली किसी ने कहा तेरा शोहर, फिर आगे गई तो कहा तेरा भाई। चार रिश्ते हैं जो औरत की हिफाजत करने वाले हैं, बाप, भाई, उसके बाद शोहर है, फिर बेटा है, पर चारों ही शहीद हो गए हैं। तो औरत को चाहिए था ना कि बेहोश होकर गिर जाती, उसको होश ना आता, कौमे में चली जाती, परेशान हो जाती। लेकिन वो हर बार पूछती है आईना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार कैसे हैं। और जब आगे बढ़ के हुजूर का चेहरा देखती है ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के कहती है कुल्लु मुसीबतुन बअदका जलालुन या रसूलल्लाह, हजूर आपको देखा है मुझे सारी मुसीबतें ही भूल गई हैं, कोई मुझे मुसीबत नजर ही नहीं आती। आपका चेहरा बद्दुआ देख ली है। बढ़कर उसने रुखे अक़दस को जो देखा तो कहा तू सलामत है। तो फिर हीच है सब रंजो अलम, मैं भी और बाप भी, शोहर भी, बरादर भी फिदा, ऐ शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज़ है हम। हजूर जब आप हैं तो फिर हमारी क्या औकात है। माँ बाप बहन भाई अइज़ो करबा का गम भी कोई गम है? मैं तो इस गम को गम समझती ही नहीं। माँ बाप बहन भाई अइज़ो करबा चले गए तो क्या होगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप सलामत है तो सब सलामत है, और अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैंने माँ बाप बहन भाइयों को करना क्या था। आप मौजूद है, आपको देखा है तो मुझे तो मुसीबत ही नहीं लग रही, सारी मुसीबतें मुझे भूल गई है। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत थी नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत सफ़वान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ग़ज़वा हुनैन के मौका पर ईमान लाए थे। फतह मक्का हुआ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान के साथ मक्के में दाखिल हो गए। हजूर ने ऐलान फरमा दिया आम माफ़ी का, लेकिन सफ़वान बिन उमय्या जो था इसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़े दुख दिए थे। ये भाग गया था, परेशान था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो दूर जाके कहीं छुप गया था। इसके एक दोस्त थे हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ईमान ला चुके थे। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुँचे। इसने दूर से आते देखा तो एक गुलाम था साथ, उसने कहा कि सफ़वान कोई आ रहा है, हाथ में तलवार है, पता नहीं क्या होगा। हज़रत सफ़वान बिन उमय्या ने देख के कहा कि ये तो उमैर आ रहा है और लगता है कि मुझे छोड़ेगा नहीं। हज़रत उमैर जब पास पहुँचे ना तो हज़रत सफ़वान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे। इन्होंने बाहर निकल के कहा उमैर याद कर
तुम छोटे से थे जब मैं तुम पर एहसान करता था, तुम्हारे घर वालों को मैंने पाला है। कोई मुसीबत के वक्त सफवान पीछे नहीं हटा, हर वक्त तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे काम आया। लेकिन सफवान को कत्ल करने के लिए तुम ही आ गए हो, तुम ही मुझे मारोगे। कम से कम वह एहसानात याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं। वह एहसानात ही तुम्हें याद आ जाए तो कम से कम तुम अपनी तलवार तो रोक लोगे। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, सफवान मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए नहीं आया। क्यों आए? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से तुम्हारे लिए पनाह हासिल की है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। सफवान बिन उमैया कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ किस तरह चलूँ और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मुझे पनाह दी है? मैं तो इसको कभी भी नहीं मानूंगा जब तक मुझे कोई निशानी नहीं दिखाओगे। कोई निशानी तो दिखाओ ना कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पनाह दी है। ये वो हमदर्दी है जो हज़रत उमैर ने दिखाई थी। आपने ये नहीं कहा सफवान नहीं जाता तो ना जा, तेरी मर्जी है। जब मैं कह रहा हूँ कि चल और तू चला जाना, मुझ पे एतमाद कर। फरमाया, वरना रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की मोहलत दी है, 2 महीने के बाद तू बचेगा नहीं। हजरत सफवान बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब तक मुझे कोई निशानी नहीं ना मिलती कि हुजूर ने मुझे पनाह दी है, मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज है। फिर हजरत उमैर अपने उस मोहसिन के साथ भलाई करने के लिए फिर वापस पलटे हुजूर के पास। पता नहीं कितना सफर था कि आप करके आए थे, और आप ये कह सकते थे ना कि नहीं सफवान, अगर तुझे जिंदगी अजीज तो ना सही, एक तो मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ और दूसरा तू मुझे से निशानियां तलब कर रहा है, मेरा इसमें क्या फायदा है? तू बच जाएगा तो अच्छी बात है, ना बचेगा तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है। नहीं मेरी बात मानता तो ना मान, आखिर तुझे मरना तो है ना। लेकिन मुसलमान जिसके साथ फिर हमदर्दी करता है ना, मुखलिस होकर करता है, और जिसके साथ दुश्मनी करता है वो भी मुखलिस होकर करता है। वजह कि उसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए है, उसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए है, अपनी जात के लिए नहीं है। तो आप वापस पलटे, जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा सफवान बात नहीं मान रहे। सफवान कहते हैं जब तक कोई निशानी नहीं देंगे तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा शरीफ उतार के हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उमैर को दिया। फरमाया जाओ जाके सफवान को ये इमामा दिखाओ और उसे कहो कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया सफवान तुम्हें अमान मिल गई। हजरत उमैर पास गए, कहा सफवान तुम्हें अमान मिल गई है। हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, अभी तक मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं कैसे मान लूँ कोई निशानी। तो हजरत उमैर फरमाने लगे कि जब हुजूर मक्के में दाखिल हुए थे तुमने उनका इमामा शरीफ देखा था? कहा हाँ देखा था। हजरत उमैर ने वो इमामा शरीफ निकाला और निकाल के हजरत सफवान के सामने करके फरमाया ये लो, फिर रसूलुल्लाह ने निशानी के तौर पे इमामा अता फरमाया है। हुजूर ने फरमाया सफवान को ले आना। हजरत सफवान को पकड़ा और पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। असर की नमाज थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज अदा फरमा रहे थे। सफवान जब जाकर ठहरे ना तो जाके देखा कि सहाबा और नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो सफवान कहने लगे उमैर कितनी नमाजें पढ़ते हो दिन में? फरमाया 5 फ़र्ज़ हैं और 5 अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कहा अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सलाम फेरते ही हुजूर ने फरमाया हाँ सफवान बताओ, नीचे आओ, हमारे पास पहुँचो। तो हज़रत सफवान ने बुलंद आवाज़ से कहा हुजूर जब तक अमान नहीं देंगे तब तक मैं नीचे नहीं आऊँगा। आप बताइए, आपने कहा है कि आपने अमान दे दी है और 2 महीने मोहलत भी दी है। आपने फरमाया सफवान 2 महीने तो दूर की बात है, तुम 4 महीने मोहलत ले लो, सोचो, और सोच कर फिर जब तुम्हारा दिल मुतमईन हो तुम उस वक्त ईमान ले आना। हजरत सफवान अपनी सवारी से उतरे और मेरे मुस्तफ़ा के पास पहुँच गए। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन हजरत सफवान नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहने लगे। और हुजूर के साथ रहने वाला फिर ईमान से महरूम तो नहीं न रहता। सरकार फरमाते हैं हर बंदे के साथ एक शैतान पैदा होता है, फरिश्ता भी पैदा होता है और एक शैतान भी पैदा होता है। लोग कहते कल्ले आए हैं तो कल्ले चले जाने, कल्ले नहीं आए। जब हम आते हैं तो एक फरिश्ता और एक शैतान भी साथ आता है। तो हुजूर फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो एक शैतान और एक फरिश्ता मेरे साथ भी पैदा हुआ था। वो शैतान जो बुराइयों की तरफ बुलाता है, जिसको हम ज़ात कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे साथ रह रह कर उसको इतना फैज़ान मिला है कि रब ने उसको भी मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा दी है। अल्लाह फरमाया मेरी सोहबत की वजह से वो भी मुसलमान हो गया है। अब वो मुझे नेकी की दावत देता है, मुझे कहता है हुजूर ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मुझे मशवरा देता रहता है नेकी का।
शैतान होकर, वो जो बड़ा शैतान है ना, उसके बारे में नस मौजूद है कि वो कभी भी हिदायत नहीं पाएगा। लेकिन ये जो उसके चेले हैं, इनमें से सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ पैदा होने वाला जो शैतान है, उसको अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमा दी थी कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो अगर वो जो बुराई की तरफ बुलाने वाला पैदा किया गया वो हुजूर की वजह से सीधे रास्ते पे आ सकता है, तो फिर सफ़वान बिन उमैया क्या था, हुजूर ने साथ रख लिया। सफ़वान बिन उमैया नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहने लगे। सफ़वान बिन उमैया ने 200 तलवारें नबी पाक अलैहिस्सलाम को दी। कितनी? 200। कहा हुजूर ये बताइए कि आप ये वैसे ही लेंगे, कब्जा कर लेंगे, या इसकी कीमत देंगे? फरमाया ना तो कीमत देंगे ना कब्जा करेंगे। आरियतन यानी उधार नहीं है, लड़ेंगे, जो टूट जाएंगी उसके पैसे तुम्हें दे देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि गज़वा हुनैन का मौका आ गया। सहाबा का जम्मे गफीर था, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा लड़ने के बाद काफिर जब भाग गए, बहुत सारा माल गनीमत हाथ में आया। हजरत सुफ़वान फरमाते हैं कि बकरियां भरी हुई थी, इतनी ज्यादा बकरियां थी कि मैं खुद हैरान था, और हुजूर उसके इर्द गिर्द फेरे लगाते थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते थे कि कौन सा माल गनीमत हाथ आया है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सुफ़वान से फरमाया, सुफ़वान जाओ, सारे का सारा मैं तुम्हें अता फरमाता हूँ। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुफ़वान कहते अभी तक मैं इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन जब मैंने हुजूर की अता देखी ना, मैंने हुजूर का देना देखा, हुजूर का अता फरमाना देखा, तो कहा मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी अता कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये अता वो ही कर सकते हैं जिसको रब ने अपना रसूल बना के भेजा हुआ है, और मैं दूसरा बंदा इतनी बड़ी अता नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया का प्यार है, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की अकीदत फंसी हुई है। इतना बड़ा सादो सामान वो कभी भी किसी को नहीं दे सकता। हजरत सुफ़वान फरमाते मैं हुजूर के कदमों में गिरा और मैंने कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल कर लिया था। और फिर हुजूर को मुखातब होकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा माज़अल्लाह बुरा कोई नहीं लगता था, लेकिन कसम खुदा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने दिल से गवाही के तौर पर आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अब आपसे ज़्यादा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता हूँ, और मैं आपसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि जिस शहर में आप रहते हैं मैं उस शहर से भी मोहब्बत करने लग गया हूँ। हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ईमान लाई थी ना, तो आपने भी यही कहा था। वो हिंदा जिन्होंने हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उहद के मैदान में शहादत के बाद कलेजा चुबाया था, लेकिन जब चुबाया था तब गुनाहगार थी, तब कुफर में थी, लेकिन जब ईमान ले आई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया, अब सहाबिया बन गई हैं। और जब बंदा सहाबी बन जाता है तो वो क्या होता है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, रब उससे राज़ी हो जाता है और वो अल्लाह से राज़ी हो जाता है। फिर उस पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं रहता, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं रहता, कोई बंदा उसके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान ले आई। जब ईमान लाई है तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल तो दुखा हुआ था, आपको पता था कि मेरे चचा के साथ क्या किया गया। तो हुजूर ने फरमाया था, हिंदा तुम ईमान ले आई हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे सामने ना आना। क्यों? फरमाया इसलिए कि जब तुम आओगी मेरे चचा मुझे याद आ जाएंगे, और मैं अपने चचा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मुझे याद आएंगे किस तरह उनका कलेजा चुबाया गया था, किस तरह उनकी लाश के साथ किया गया था, मेरा दिल बड़ा दुखता है, बस मेरे सामने ना आना। तो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाया करती थी कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा बुग़्ज़ किसी के साथ नहीं था, लेकिन जब मैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, फरमाया रोए ज़मीन पर हुजूर से ज़्यादा मोहब्बत भी मुझे किसी के साथ नहीं थी। फरमाया पूरे आलम के अंदर मदीने से बुरा शहर मुझे कोई नहीं लगता था, लेकिन जब हुजूर के साथ मुझे मोहब्बत हो गई है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मदीना मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया, मैं उससे मोहब्बत करने लग गई। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत सोबान के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हजूर ने फरमाया, सोबान तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर मैं सोच रहा हूँ और बड़ी टेंशन में हूँ कि हम यहाँ पर आपका दीदार करना चाहते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं, घर से निकलते हैं, मस्जिद नबवी तक आते हैं, आपका चेहरा वद्दुहा देखते हैं, दीदार नसीब होता है, खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल क़यामत का दिन होगा, आपके सदक़े में रब हमें भी जन्नत अता फरमाएगा, हम भी जन्नत में होंगे, आप भी होंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह आप तो बड़े बुलंद मर्तबों में होंगे ना, तो आपका जहाँ मर्तबा होगा गुलाम तो वहाँ नहीं होंगे, गुलाम तो इधर उधर ही होंगे, जन्नत में होंगे, लेकिन यहाँ पर जो दीदार की लज्जत पाते हैं वो जन्नत में तो नसीब नहीं होगी, इसलिए चेहरे का रंग बदला हुआ है।
कि आका जन्नत भी मिल जाए और आपका दीदार ना हो तो फिर बड़ी परेशानी होगी। हम चाहते हैं जन्नत भी मिल जाए, दीदार भी नसीब हो जाए। तो बस यही सोच सोच कर चेहरे का रंग बदल गया है। अल्लाह आपको और मुझे भी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। सर कहिए आमीन। अल्लाह करे कि हुजूर की मोहब्बत में चेहरा जर्द हो जाए। अल्लाह करे कि ये टेंशन ज़हन पर सवार हो जाए कि जिस महबूब के साथ मोहब्बत करता हूँ उसका दीदार तो नसीब होना। जन्नत में तो मांगते ही है कि हुजूर के कदमों में जगह नसीब हो जाए, लेकिन पता नहीं वहाँ नसीब होनी है कि नहीं। लेकिन दिल में एक तड़प तो होनी चाहिए, जैसे पैसे की तड़प है, जैसे दौलत की तड़प है, जैसे फैक्ट्री की तलब है, जैसे माल की तलब है, जैसे जायदादों की तलब है, जैसे ज़मीनों की तलब है। काश अपनी औलाद से बढ़ के रसूलुल्लाह की तलब होती, काश अपनी जायदाद से बढ़ के रसूलुल्लाह की तलब होती, काश अपने बेटों से बढ़ के रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तलब होती। लेकिन हम ज़बान की हद तक आशिक़ रसूल हैं, हम अमली तौर पर आशिक़ रसूल नहीं हैं। बड़ी मादरत के साथ देख लें, हमारे माल के खिलाफ कोई बात करे हम लड़ने पे आ जाते हैं, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात करे तो हम कहते हैं यार मसलिहत पसंदी ये है कि कोई बात ना करो। मौलवियाँ तो एवं लड़न दे बहाने बनाए ने, एवं उहदे खिलाफ बोलते, एवं उहदे खिलाफ। अपने माल के खिलाफ कोई बात करे तो हम उसके भी खिलाफ हो जाते हैं, अपनी औलाद के खिलाफ कोई बात करे तो हम उसके भी खिलाफ हो जाते हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बात करे तो हम उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करूँ और वो प्रोजेक्ट पर कोई तनकीद कर दे तो हम उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ उस मुसलमान पर कि जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के मुतालिक बातें सुनता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मसलिहत पसंदी होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ ना बोलो, इंतशार फैल जाता है। मैं कहता हूँ इंतशार तो भाई दो भाई आपस में जायदाद के लिए, विरासत के लिए लड़ पड़े ना, तो एक चुप कर जाए और एक सारा हिस्सा दबोच ले तो फसाद खत्म हो जाता है। तो वो फसाद खत्म क्यों नहीं करते? उसके लिए चुप हो जाओ ना तुम अपनी जायदाद का मुतालबा करो, ना विरासत का मुतालबा करो। तुम इंतशार पसंद नहीं हो ना तो ना इंतशार फैलाओ, लेकिन तुम जायदाद के लिए अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ रहे। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए तुम दूर दूर के लोगों को भी छोड़ देते हो और तुम कहते हो खैर है, कुछ नहीं होता, कुछ भी ना कहो, इंतशार फैलता है। अरे हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा देखिए, आपने कहा हुजूर जन्नत तो मिल जाएगी। अल्लाह का जन्नत ही बंदे का मंजिल मकसूद है ना, मिल गई तो बस ठीक है जी, अल्लाह राजी हो गया। लेकिन कहा या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है कि जन्नत भी हो, लेकिन वो जगह हो जहां दीदार मुस्तफ़ा होता रहे। जन्नत भी और उस जगह पे मिल जाए जहां पे हुजूर आपका दीदार हो। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं कि जन्नत मिल भी गई, सुबान को मुस्तफ़ा का दीदार नसीब ना हुआ तो सुबान का बनेगा क्या? अभी ये बातें हो रही थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। फिर मैं सोने इससे कह दे मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। फिर मैं सोने सुबान से कह दे तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता रहे, उधर जन्नत भी अता फरमाएंगे और जन्नत भी वो भी अता फरमाएंगे जहां पे तुम्हें मुस्तफ़ा का दीदार होता रहेगा। फरमाया तुम्हें जन्नत चाहिए तो फिर मुस्तफ़ा के पीछे चलो। अगर तुम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पीछे चलने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें जन्नत भी अता की जाएगी, मुस्तफ़ा का दीदार भी अता फरमाया जाएगा। ये वो मोहब्बत थी सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान। आज हमें इन मोहब्बतों का बड़ा जज्बा चाहिए और हमें ज़रूरत है ऐसी मोहब्बतों की। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से टूट के मोहब्बत करें। हम दुनियादार हो गए, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, हमें दुनिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम सिर्फ माल के दिलदादा हैं। हमारे दावा मोहब्बत जो है वो सिर्फ ज़बान तक है, दिल के अंदर नहीं उतरा। वरना गुलामी रसूल में मौत का दावा करने वाले गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं कर रहे? जिनको गुलामी रसूल में मौत का दावा है उनको गुलामी रसूल में माँ बाप की मोहब्बत कबूल क्यों नहीं है? जो गुलामी रसूल में मौत का दावा कर रहे हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और सूदी कारोबार क्यों नहीं छोड़ रहे? गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन गालियां छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन गीबतें छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन हराम कमाना छोड़ना हमें कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन इल्म दीन कबूल नहीं। गुलामी रसूल में हमें मौत कबूल है लेकिन रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में हमें मौत कबूल है लेकिन 5 नमाज़ें बाद जमात आकर पढ़नी कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन रिश्वतों का लेन देन छोड़ना कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन जुल्म का छोड़ना कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन मुसलमानों को तकलीफें देना छोड़ना कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है
लेकिन छोटे भाई का हक खा जाएंगे। हमें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गरीबों का इस्तेहसाल करना हम नहीं छोड़ेंगे। यह छोड़ना हमें कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन हमें गुनाह छोड़ना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन बहन, भाभी, भाई, बहन, माँ, फुफ्फो, खाला वगैरह, बेटी, उनको पर्दा करवाना कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन घर में जो बेहयाई हो रही है वो छोड़ना कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे मदीना शरीफ की औरतें बड़ी पसंद है। क्यों? फरमाया अल्लाह का हुक्म आता है तो जितनी जल्दी ये अमल करती है मैंने किसी को अमल करते नहीं देखा है। पर्दे का हुक्म नहीं आया था, अल्लाह करीम ने पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाया। जिस दिन हुजूर ने फरमाया पर्दे का हुक्म आ गया है, तो अगले दिन मदीने की हर औरत पर्दा करके निकल रही थी। किसी ने ये नहीं कहा कि लो सारे सानू वेखे है तो उनका तो पर्दे, ऐसा नहीं था। हुक्म आया था तो अगले दिन ही हर औरत पर्दा करके बाहर निकल रही थी। क्या हमारा दिल ऐसा है? कुरान की आयत हमें सुनाई जाए, वह झूठ नहीं बोलो तो आज के बाद झूठ पक्का ही छूट जाए, नहीं है। आपको पता है कि खेती जो है ना उस जमीन पर उगती है जहाँ पे अंदर कोई चीज़ मौजूद हो, जरखेज हो जमीन। जब बंजर हो जाए ना, वहाँ पे आप जितने मर्जी बीज डालते रहें, उसको जितना मर्जी आप कुरेदते रहे, खोदते रहे, बड़ी मुश्किल है कि वो जाके जरखेज हो, बड़ी मुश्किल। बंजर ज़मीनें बहुत कम आबाद होती हैं। हमारे दिल की ज़मीनें कहीं बंजर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मोहब्बत रसूल का बीज डालते रहे और वो पौधा भी ना बन सके। दरख्त तो दूर की बात है, फल लगना तो बाद की बात है, पौधा भी ना उग सके वहाँ पर। बीज तो डाल दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत रसूल से हम बिल्कुल खाली हैं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत है तो जुम्मा पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, मोहब्बत है तो यहाँ पर बयान सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो इस्लाम को मतलूब मोहब्बत है वो मोहब्बत हमें नहीं है। जो इस्लाम चाहता है ना मोहब्बत, वो मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद नहीं है भाई। हर चीज़ से बढ़ के रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के साथ मोहब्बत की जाए। तबूक का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था माल लाओ। हज़रत उमर फरमाते हैं उन दिनों मेरे पास बड़ा माल था, उन दिनों मेरे पास बड़ा माल था। हर दफ़ा जब भी नेकी की बात आती तो हज़रत अबू बकर मुझसे बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा आज मेरे पास माल है, आज मैं बढ़ जाऊँगा। और ये मुकाबला मुसलमानों में होना चाहिए कि भाई मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ तो आज के बाद मैं 6 पढ़ूंगा, देख लेना। ये मुकाबला मुसलमानों में होना चाहिए। 2 दोस्त हैं ना, नमाजी हैं, तो मुकाबला कर लो भाई। इस महीने देखते हैं कि कौन 5 नमाजें मस्जिद की पहली साफ में पढ़ता है। मुकाबला होना चाहिए ना, नेकियों का मुकाबला करें। हज़रत उमर ने किया है। हज़रत उमर ने फरमाया हर बार अबू बकर बढ़ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुकाबला है कि अबू बकर को बढ़ने नहीं देना। और अपने घर का आधा सामान ला के सरकार की बारगाह में पेश किया। सुभान अल्लाह तक बोला यार, कितना आधा सामान, कितना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ना आधा सामान देने के लिए। क्यों भाई? मस्जिद की तमीर शुरू होए तो मैं कहा भाई है कोई चौधरी साहब जेड़े कोई अद्धी जायदाद ही मस्जिद को दे देना, अद्धी छड़ के कोई 10वां हिस्सा भी दईए तो बड़ा बड़ा जिगरा हो। 10वां छड़ के 1% भी दे रहे ना तो बड़ा बड़ा जिगरा होएगा उसका। 2 हाथों नाल सलाम करांगा उन्हें, क्योंकि माल की मोहब्बत जो है ना ये बड़ी गंदी चीज़ है, ये बहुत गंदी चीज़ है। माल नहीं निकलता जेब से। ज़कात भी देनी पड़े तो टेंशन होती है, आंदे तो किसी को टेंशन नहीं होती। जो होता है बंदा वाह करके लेता है। मेरे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं माल जब आता है तो बंदा वाह करके लेता है। क्या करके लेता है? उच्ची बोलो ना, की करके लेता है? वाह। जेडे बाहर के मुल्क गए ने ना, बाहर के मुल्क डॉलर का रेट वादा तो वाह वाह। क्यों? उन्होंने उत्ते पे बई जो रुपया उन्होंने 70 का 80 का हो गया। उन्हें कहा वाह वाह या अल्लाह और बधा, और बधा। और मेरा एक यार है उन्हें तो करता है, उन्हें अपने भरा को सौदिया कर दिता है। तो जो बात आंदा या अल्लाह और बधा दे, क्यों? वो आंदा चलो वो तो आएगा कम से कम करदा तो लते ना, वो तो बाद भावे थले आइए। होता है ना, माल की मोहब्बत है ना, बंदा कहता और बधे। एक तो वाले आंदे ने या अल्लाह घटा बड़ी महंगाई हो गई, या अल्लाह घटा बड़ी महंगाई हो गई। हज़रत उमर ने आधा सामान घर का दे दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कितना लेके आए हो? हजूर आधा सामान पेश कर दिया है। मोहब्बत है ना सरकार से, नेकियों से मोहब्बत है। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर भी आ गए। हज़रत अबू बकर फिर आशिक अकबर है। एक छोटी सी बुचकी बांधी हुई थी गठली और कंधे पे लटकाया हुआ था, और ला के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। भाई जिथे मर्जी तुसी पैसे दबो ना जाके, जिथे मर्जी
تھی کہا بھائی 1 लाख रुपया मेरे लो मस्जिद नो मदरसे नो, तो मौलवी साहब कभी भी ये नहीं पूछेंगे राणा साहब अकाउंट च किन्ने रह गए थे। ये सवाल बनता है क्यों भाई? कोई बंदा भी तुसी कहो जनाब साढ़े लो कबूल फरमाओ जी 50 बोरियां सीमट दियां, तो तुहानू क्या मौलवी साहब ये पूछेंगे कि हुण पिछे किन्ने को पैसे रह गए तुहाडे कोल? इन्हें हुंदा नहीं, जो आउंदा है उन्होंने आमीन करके कबूल है तो दुआवां यही है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल ही कुछ और कर दिया। हज़रत अबू बकर लेके आए हैं तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर पीछे क्या छोड़ के आए हो? यही तो गल है ना, यही तो हुजूर दिखाना चाहते थे। और भाई मोहब्बत करनी है तो फिर देखो मोहब्बत के असूल। जब मुस्तफा ने तलब फरमाया है तो अबू बकर ने जो सूट पहना हुआ था ना वो भी उतार दिया और बोरिया का लिबास पहन लिया और कांटों के बटन लगा लिए थे। हजरत जिब्रील हाजिर हुए थे और वही लिबास पहना था जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहना हुआ था। फरमाया जिब्रील तेरे जिस्म पर ये लिबास क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह निगाह उठा के देखिए। जिब्रील ने नहीं, अल्लाह के हर फरिश्ते ने अबू बकर की सुन्नत को अदा कर रखा है। सारे फरिश्ते अबू बकर वाला लिबास पहन के फिर रहे हैं। अबू बकर घर क्या छोड़ा है? अब कईतुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू। कमाल का जवाब। कहा या रसूल अल्लाह उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आ गया। कुछ भी नहीं उनके लिए छोड़ा, कुछ भी नहीं। नतीजा पता है क्या निकला है? मोहब्बत का नतीजा तो निकलता है। अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और जिब्रील को फरमाया कि जाओ मेरे महबूब से जाके क्या अल्लाह आपको सलाम कहता है। और सिर्फ इतना नहीं, फरमाया कि मेरे महबूब से कह दे कि अबू बकर अल्लाह तुझे भी सलाम कहता है। यार देखो तो सही ना, वो कहने मेरे पीरा का मैनू सलाम आया दीवा दीवा। और जिसको पीरों का सलाम आए उसके तो वारे न्यारे हो जाए, तो जिसको मेरे रब का सलाम आए। वो कहते जी फलां बुजुर्गा नूं हुजूर दी कब्र दे अंदरों आवाज आ गई वालेकुम सलाम। मैं कहता हूं जिसको नबी का सलाम आए उसको तो दोनों हाथों से सलाम, तो जिसको नबी के खुदा का सलाम आ जाए अकीदा अहले सुन्नत में उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। दो ही हस्तियों को अल्लाह का सलाम आया है, एक खदीजतुल कुबरा को और एक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को। इश्क की आला मनाजिल है, मोहब्बत की आला मनाजिल है। और फिर अल्लाह पूछ रहे हैं, अल्लाह पूछ, मेरे कई भाई वो हैं जिनको जुम्मे में वो आते हैं अल्लाह की रिजा के लिए तशरीफ़ लाते हैं, घंटा सवा घंटा आधा घंटा बैठते हैं। हालांकि उनसे इतनी देर ज़मीन पे बैठा नहीं जाता, आदत नहीं है, लेकिन बैठते हैं। क्यों? अल्लाह की रिजा के लिए, रब राजी हो जाए। रब कुछ ही बोलो ज़रा, अल्लाह इसीलिए बैठते हैं, इसीलिए आते हैं। और भैया किताब जी मैं गल्ला करना वो 500-700 हज़ार रुपया 2000 रुपया लो किताबा च लग जाती ने, लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए आते हैं। नहीं चलो मौलाना से जाकर सुनते हैं कैसे करते हैं। चलो एक अंदाज होता है, अंदाज की वजह से भी एक मोहब्बत होती है, चलो यार वहाँ सुन के ज़रा मज़ा कुछ और होता है वगैरह वगैरह। सारी उम्र गुजर जाती है अल्लाह को राज़ी करते, लेकिन हमें नहीं पता चलता अल्लाह राज़ी हुआ है कि नहीं। क्यों भाई? एंडी है, एंडी है, कुछ ही बोलो एंडी है ना, पता ही नहीं चलता कि अल्लाह राज़ी हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ना, इतनी मज़े की बात है ना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब अपने घर का सारा ही सामान दे दिया ना, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज के सलाम भी कहा। और अल्लाह ने ये नहीं कहा अबू बकर मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अबू बकर से पूछ कि अबू बकर तो सब कुछ कुर्बान करके तू अपने रब पर राज़ी है ना। ये नहीं कहा कि मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, ये पिछला दर्जा है। अगला दर्जा ये है कि महबूब मैं तो इससे राज़ी हो ही गया हूँ ना। अब अगले दर्जे का पूछ कि बंदा सब कुछ कुर्बान करने के बाद अफसोस का शिकार तो नहीं हो गया, वो भी हमसे राज़ी है कि नहीं है। बाद में बंदा जज्बे चीज़ दे छड़ते होंगे वो है कि हो गया एवं ही उठ के ऐलान कर देता था, जज्बा जज्बा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सारा सामान दे दिया। रब ने फरमाया महबूब पूछ अबू बकर हमसे राज़ी है कि नहीं। सरकार ने फरमाया अबू बकर अल्लाह पूछता है, तू अल्लाह से राज़ी है सब कुछ दे के? रब पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर रो पड़े, आंखों से आंसू है। कहते हैं अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी। या रसूल अल्लाह मैं अपने रब तो राज़ी हाँ, आका मैं राज़ी हाँ। या रसूल अल्लाह मैं राज़ी हूँ। बिल्कुल भी दिल में मलाल नहीं है कि अबू बकर ने घर का सारा सामान क्यों दे दिया है। बस इतना पता है
کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت آپ سے کرتے ہیں تو پھر یہ جان و دل، یہ مال و دولت کیا ہے؟ حضور اپنی جان بھی آپ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہ ان کی محبتوں میں سے مجھے آپ کو حصہ عطا فرمائے رب العالمین۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ دولت دے یا نہ دے، نہیں دے تو صبر عطا فرما، قناعت کی دولت عطا فرما، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو دے تو یہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن مالک میری نسلوں میں صحابہ کے عشق میں سے کچھ حصہ ضرور عطا فرمانا۔ ان کو عشق کا ایک قطرہ بھی مل گیا نا تو دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہ جو عشق سے خالی ہوتے ہیں نا، دولتوں کے لیے وہی روتے ہیں، آپ کے اور میرے جیسے لوگ جن کو عشق کا ایک قطرہ بھی نصیب ہو گیا ہے نا، وہ دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے نام پہ کوئی حرف آنے نہیں دیتے۔ اللہ ان محبین کی محبت کا صدقہ آپ کو مجھے حضور سے محبت